Hi everyone, welcome to Rodha. In today's video, I'll be discussing this particular set here. It's a set of games and tournament as per your request. So you guys wanted me to bring a set on games. So यहाँ पे मैं games का set लेके आया हूँ, ठीक है. I would want you guys कि आप ये video pause करो, ठीक है, and attempt this set, right? And these are the questions here, and there are certain more conditions given on this screen. सब लोग screenshot लो, please solve this particular set. And unlike the last video, please do let me know in the comment section below कि आपके 4 में से कितने correct हुए, ठीक है. How many questions did you guys get correct out of the set of 4 questions, right? Alright, chalo. And also let me know how was the difficulty level. Did you guys love the set, or you want me to bring more difficult sets or slightly easier sets? You know, we always welcome any kind of inputs coming from your side. So because this channel is for you guys, it's for your learnings, for your improvement. So anything that you feel that is required, any inputs that you can give us, that will be more than helpful, and I'll be happy to cater to that and implement them in the upcoming videos that I'll be bringing under this particular series. Alright, so let's start with the solution here now. So it says 6 rising superheroes, Astra, Blitz, and Crimson, Dusk, Ember, and Fire were chosen to compete in the annual hero trials, a legendary test at the Academy of Extraordinary Beings. Okay, so अब यहाँ पे 6 लोग हैं, that is A to F, right? And they're chosen to compete in some hero trial, which is a legendary test at the Academy of Extraordinary Beings. Okay, the challenge proved their powers, strategy, and control across a series of missions to earn a place among the elite defenders of Earth. Okay, so this is basically the story part, right? There's nothing concrete that I'm gonna get out from here, right? अब आगे पढ़ते हैं. The competition started with 3 core trials, trials 1 to 3, where each hero got a chance to unleash their powers in a precision strike. Okay, so the most powerful accurate move, a direct hit on the power beacon, earned 5 points. Lesser hits earned 4, 3, 2 or 1 point depending upon the precision and impact. Okay, so if some hero so there are basically 3 core trials, right? And if some hero is hitting a direct hit on the power beacon, then that hero is gonna earn 5 points for that hit. Otherwise, if it's not a direct hit, then the hero can earn 4, 3, 2 or 1 point depending upon the precision and the impact. Alright, now heroes who landed a power beacon strike during the core trials earned access to the elite trials, trial 4, 5 and 6. Alright, now anybody who is hitting a direct hit, ठीक है, किसी का भी अगर direct hit आ रहा है during the core trial, that is trial 1, 2 and 3, तो वो बंदा एक extra trial earn करेगा for every direct hit in the elite trial, that is trial 4, 5 and 6. These were bonus rounds only for the best of the best and followed the same scoring system. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे क्रिम्सन ने ना उसको ट्रायल 4 में चांस मिला, ना ट्रायल 5 में, ना ट्रायल 6 में, तो उसको कोई भी एलीट ट्रायल में चांस नहीं मिला. क्यों? क्योंकि उसने ट्रायल 1 to 3 में कहीं पे भी डायरेक्ट हिट नहीं लिया है. ठीक है, सो द नंबर ऑफ डायरेक्ट हिट्स दैट यू टेक अमंग ट्रायल 1 to 3, उतने बोनस चांसेस मिलते हैं, राइट? दीज वर द बोनस राउंड ओनली फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड फॉलोड द सेम स्कोरिंग सिस्टम. तो स्कोरिंग सिस्टम भी सेम है. अगर बोनस राउंड में आपका डायरेक्ट हिट होता है तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, अदरवाइज यू गेट ईदर 4, 3, 2 or 1. ठीक है, now each hero's final score was the total of all the points they earned across every trial they completed. ठीक है, तो whatever is the total score is calculated as sum of all the points in all the trials, that is core trial plus elite trial. ठीक है, core trials के score और elite trials के scores जो है उनका sum जो आएगा, that is gonna be the total score. ठीक है, now further it says but during this post-trial celebration, someone's teleportation glitch scrambled part of the scoreboard. Okay, so now because of some glitch, the scoreboard got scrambled. So now it's up to you to figure out what really went down. Okay, so we are left with question marks now. ठीक है, हमारे पास question marks है यहाँ पे, और हमें figure out करना है इस set में कि यहाँ पे क्या points आने वाले हैं. So basically all in all ये कहना चाह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ये मिसिंग डेटा है एक तरीके से मेरा, और मुझे इसको फिगर आउट करना है कि यहाँ पे क्या पॉइंट्स आने वाले हैं. ठीक है, सो वेरेवर एनपी इज रिटन इन द टेबल, द हीरो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट ट्रायल. ठीक है, सो एनपी का मतलब है कि हीरो ने पार्टिसिपेट नहीं किया.
क्वेश्चन मार्क का मतलब है द हीरो डिड पार्टिसिपेट बट द स्कोर डेटा वाज लॉस्ट, ठीक है, थैंक्स टू द ग्लिचिंग पोर्टल। ओके, सो ग्लिचिंग पोर्टल की वजह से जो जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे स्कोर मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, द स्कोर हैज बीन लॉस्ट। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जैसे कि देखोगे तो टोटल तो क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है, मतलब टोटल स्कोर तो कुछ आने ही आना है, राइट, आई एम सपोज टू फिगर इट आउट, है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं डस्क की, ठीक है, इफ यू लुक एट डस्क, ठीक है, तो डस्क ने राउंड 4 में भी, ट्रायल 4 में भी पार्ट लिया, ट्रायल 5 में भी उसको एक चांस मिला है पावर बैकएंड हिट करने का, और ट्रायल 6 में भी चांस मिला है। तो कहना से अगर उसको 3 बोनस चांस मिले, मतलब उसके तीनों ट्रायल में 5-5-5 रहे होंगे, राइट। तो ऐसे करके ना मुझे ये डेटा को फिगर आउट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव फ्यू एक्स्ट्रा कंडीशंस टू हेल्प मी, ठीक है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हैं, राइट, जिसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। और मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस अगर एक बार आप पढ़ोगे तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट टोटल स्कोर एंड द हाईएस्ट टोटल स्कोर, डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फाइट टोटल स्कोर, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज ब्लिट्स टोटल स्कोर, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो बेसिकली सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि ये टेबल मेरी कंप्लीटली फिल होने वाली है, ठीक है ना। अब लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद दिस टेबल वन बाय वन। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मार्क्स थे इस टेबल में, ठीक है, दिस पर्टिकुलर टेबल जो भी क्वेश्चन मार्क थे वो मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है, बाकी डेटा मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको एक एक करके फिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ना आई थिंक मैं सबसे पहले काम क्या करना चाहूँगा कि मैं देखना चाहूँगा कि किसको कितने 5 मिले, किसने कितने डायरेक्ट हिट्स किए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ए की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्रा, ठीक है, तो एस्ट्रा को बस एक बोनस चांस मिला है, दैट इज इन ट्रायल नंबर 4, दैट मीन्स उसने 1 2 3 में एग्जैक्टली एक जगह 5 हिट किया होगा, ठीक है, एग्जैक्टली 1 5, राइट। अच्छा, बी को 2 चांस मिले, दैट मीन्स बी के पास 2 डायरेक्ट हिट है 3 में से, राइट, ओके। सी को ए बी चांस नहीं मिला एक्स्ट्रा, राइट, सो सी डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट हिट्स, राइट, फॉर श्योर। डी को तीनों एक्स्ट्रा चांस मिले, अब ये स्कोर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, सो दैट मीन्स डी हैज गॉट 3 एक्स्ट्रा चांस। तो वो कैसे मिल सकता है, जब उसका ट्रायल 1, ट्रायल 2 और ट्रायल 3 तीनों में एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स होंगे तभी मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ई की बात करता हूँ तो ई हैज गॉट एग्जैक्टली 1 चांस, मतलब उसके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा 5 है, राइट, और एफ के पास 2 चांस है, दैट मीन्स एफ हैज गॉट एग्जैक्टली 2 5s है, ठीक है। सो दीज आर द नंबर ऑफ 5s दैट दीज प्लेयर्स हैव एज पर द डायरेक्ट हिट्स दे हैव गॉट इन द ट्रायल 1 2 3, दैट इज द कोर ट्रायल, ठीक है, और ये मेरा एलीट ट्रायल है 4 5 6, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड ई एंडेड अप विद द सेम टोटल स्कोर, ठीक है। अब अगर मैं ए की बात करूं, ठीक है, तो आई नो दैट उसको ट्रायल 4 में 5 मिल रहा है, ट्रायल 2 में 4 मिल रहा है, ठीक है, तो 5 + 4 9 हो गए ए का स्कोर, ठीक है। 1 और 3 में से एक जगह कहीं 5 आएगा, राइट, तो एक को मैं 5 मान लेता हूँ, लेट से एक को x मान लेता हूँ। सो कैन आई से द टोटल स्कोर ऑफ ए इज नथिंग बट आई कैन से 14 + x, है ना, ये ए का स्कोर हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट बी, अगर मैं बी की बात करूं तो 5 5 10 दो जगह 5 आना है 1 से 3 में, और 1 और 2, ठीक है। लेट्स से मैं मान लेता हूं कि किसी 8 ट्रायल में उसका y स्कोर आ गया बिटवीन ट्रायल 1 2 3, है ना, 1 2 3 में कहीं पे y आ गया और बाकी 2 जगह 5 आएगा। तो आई से फॉर बी द टोटल इज गोना बी 10 और 2 12 और 1 13, सो द टोटल इज गोना बी 13 + y, राइट। अच्छा, अब अगर मैं ई की बात करूं तो ई क्या है यहाँ पे 5 5 10 3 13, है ना। तो अब यहाँ पे मतलब ट्रायल 1 और 2 में से कहीं ए जा 5 आएगा, ए जा मैं मान लेता हूँ z आ जाएगा, लेट से, ठीक है। तो ई का जो टोटल हो गया दैट इज इक्वल टू नथिंग बट आई कैन से 13 + z, है ना, और ये तीनों इक्वल है, ठीक है, दीज 3 आर डेफिनेटली इक्वल। अब आगे क्या कह रहा है कि क्योंकि अभी मेरे पास एक्स वाई जेड का कुछ पता नहीं था, लीव इट लाइक दिस। अब आगे कह रहा है द टोटल स्कोर ऑफ 5 हीरोज वर मल्टीपल ऑफ 3, 1 वॉज नॉट, ठीक है। अब 6 हीरो में से कोई 5 हीरो ऐसे हैं जिनका स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 है ना। अच्छा, इससे मुझे क्या सोचना मिल सकता है, ठीक है, व्हाट आई कैन थिंक हियर इज कि अगर सिर्फ एक का मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो मान लो अगर ए वो हीरो है जिसका स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बट यहां पे तो मैं कह रहा हूं कि ए का स्कोर बी के इक्वल है और बी का स्कोर ई के इक्वल है, तो अगर ए का मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हुआ तो मतलब बी और ई का भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। बट मुझे तो पता है कि सिर्फ एक ही हीरो ऐसा है जिसका स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बाकी सबके 3 का मल्टीपल है, तो वो हीरो पक्का ए बी ई तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक भी अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हुआ तो फिर तीनों को मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ऑन दिस बेसिस आई कैन कंक्लूड कि 14 + x is equal to 13 + y is equal to 13 + z
और ये मेरे क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है सारे नंबर्स, ठीक है। तो अब बताओ मैं एक्स वाई जेड की मिनिमम क्या वैल्यू लूँ जिससे ये मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं सोचूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो मैं बोल सकता हूँ कि x को 1 ले लो, y को 2 ले लो और z को भी 2 ले लो, है ना। तो 15 15 15 तीनों मल्टीपल ऑफ 3 बन गए, राइट, दैट इज अ पॉसिबल केस, है ना। या फिर आप बोलोगे कि इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो और इसको भी 5 ले लो, है ना, तब भी ये 18 18 18 मल्टीपल ऑफ 3 बन जाएंगे, 13 + 5 18, राइट। अच्छा समझो यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरा कहने का, कि अगर मान लो आपने y की वैल्यू 5 ली, मतलब आप कह रहे हो कि उसके तीनों ट्रायल में, ठीक है, अगर आपने y 5 लिया मतलब आप कह रहे हो कि उसके तीनों ट्रायल में 5 आए हैं, और अगर उसके तीनों ट्रायल में 5 आए हैं, राइट, तो उसको फिर 3 बोनस मिलना चाहिए। बट ट्रायल 6 में तो यहाँ पे NP लिखा हुआ है, दैट मीन्स ही इज नॉट प्लेइंग, राइट। तो क्या ये वाला केस पॉसिबल है ना, ये वाला केस तो पॉसिबल है नहीं, और इसके बियॉन्ड में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो 1 से 5 की रेंज में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इजंट इट। सो कैन आई से द ओनली पॉसिबिलिटी इज 1 2 2, ठीक है। तो अगर ओनली पॉसिबिलिटी मेरी 1 2 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ 5 को, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2, राइट, और z की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई, राइट। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी क्या क्या वैल्यूज आने वाली है। सो आई नो फॉर ट्रायल 1 and 3 फॉर a, अगर कहीं यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। अब इसको ना एनालाइज करते हैं आगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी टू हेल्प मी सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये टिक्स हटा देता हूँ, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। चलो अब आगे पढ़ते हैं, लेट्स सी इट फर्दर। इट सेज द हाइएस्ट स्कोर इन द टूर्नामेंट वॉज 1 more than डबल द लोएस्ट स्कोर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हाइएस्ट इज इक्वल टू ट्वाइस द लोएस्ट प्लस 1, है ना। अब मुझे नहीं पता लोएस्ट कितना हाइएस्ट कितना, राइट। इट सेज इन ट्रायल 2 ट्वाइस एज मेनी हीरोज स्टक द पावर बैक इन एज इन ट्रायल 3, ठीक है। तो अब ट्रायल 2 में जितने 5 आने वाले हैं, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में जितने 5 आने वाले हैं, इट इज डबल ऑफ द नंबर ऑफ 5 दैट आर गोना अपीयर इन ट्रायल 3 कॉलम, है ना। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इन ट्रायल 2 ट्वाइस एज मेनी हीरोज स्टक द पावर बैक इन एज इन ट्रायल 3, ठीक है। पावर बैक इन मीन्स उनको 5 पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। अच्छा इसको मैं थोड़ा होल्ड पे डालता हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता मैं 5 के प्लेसमेंट्स क्या करूँगा। थोड़ा सा अगर मेरी टेबल और फिल हो सकती है तो पहले मैं उसको फिल करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो मेरे पास एक और पॉइंट बचा है, उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं उससे कुछ हेल्प मिलती है क्या। तो इट सेज एस्ट्रा एंड फेई हैड द सेम स्कोर इन ट्रायल 1 बट डिफरेंट स्कोर्स इन ट्रायल 3। अच्छा तो देखो एस्ट्रा का ट्रायल 1 में स्कोर या तो 1 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है, ठीक है, राइट। अच्छा अगर मान लो एस्ट्रा का 1 आ गया, ठीक है, तो फिर फे का भी 1 होना पड़ेगा, राइट। अच्छा अगर एक्स्ट्रा का 1 हुआ तो फे का भी 1 होना पड़ेगा, राइट। और अगर दोनों का यहाँ पे 1 हो गया, राइट, अगर एफ का यहाँ पे 1 आ गया तो बचे दो उसके ऑटोमेटिकली 5 हो जाएंगे, ये सुनो, ठीक है, हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि एफ के पास 2 5 तो आने ही आने फ्रॉम ट्रायल 1 to 3। तो अगर मैंने ट्रायल 1 में उसका 1 स्कोर डाला तो बाकी दो ऑटोमेटिकली 5 हो जाएंगे। और अगर आपने एस्ट्रा का ट्रायल 1 में 1 डाला तो फिर जो 5 बच गया वो ट्रायल 3 में जाएगा। तो उस केस में कैन आई से कि एस्ट्रा का ट्रायल 3 का स्कोर इज सेम एज दैट ऑफ एफ, राइट, फे का स्कोर, बट एज पर दिस कंडीशन दे हैव डिफरेंट स्कोर्स इन ट्रायल 3। तो कैन आई से मेरी ये कंडीशन वायलेट हो रही है, राइट। और अगर ये कंडीशन वायलेट हो रही है दैट मीन्स एस्ट्रा एंड फे कैन नॉट हैव 1 and 1 इन ट्रायल 1, ठीक है। उनके स्कोर सेम तो हैं बट वो 1 और 1 नहीं हो सकते। तो अगर वो 1 और 1 नहीं हो सकते तो कैन आई से द ओनली पॉसिबिलिटीज दे हैव टू बी 5 and 5, राइट। द ओनली पॉसिबिलिटीज कि 5 और 5 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, राइट, ओके। तो मेरे ये स्कोर प्लेस हो गए, आई एम डन विद दिस, राइट, आई एम डन विद द 2 5s हियर, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि फे का स्कोर कैन नॉट बी सेम एज एस्ट्राज स्कोर इन ट्रायल 3, तो फे का स्कोर या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर यहाँ पे 3 आ सकता है या फिर यहाँ पे 4 आ सकता है। 5 और आ नहीं सकता, 1 आ नहीं सकता, राइट, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज आई हैव हियर, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू माई प्रीवियस कंडीशन, जो कि कह रहा था इन ट्रायल 2 देयर आर एज मेनी हीरोज स्टक इन पावर बैकन एज इन ट्रायल 3, ठीक है, एज ट्वाइस एज मेनी हीरोज, ओके। अब ट्रायल 3 में जो नंबर ऑफ हीरोज पावर बैकन स्टक हुए हैं, राइट, ट्रायल 2 में, सॉरी, ठीक है, ट्रायल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ट्रायल 3 इन टर्म्स ऑफ पावर बैकन, राइट। अब अगर मैं मानता हूं कि ट्रायल 3 में सिर्फ एक पावर बैकन हुआ है तो ट्रायल 2 में 2 पावर बैकन होने चाहिए, है ना। अच्छा अगर देखोगे तुम यहाँ पे तो ट्रायल 3 के कॉलम में ऑलरेडी ये 5 है, राइट, तो तुम और 5 नहीं प्लेस करोगे क्योंकि तुम कह रहे हो कि ट्रायल 3 में सिर्फ एक पावर बैकन आया, राइट।
तो उस केस में ट्रायल 2 में 2 पावर बेकन आने चाहिए, राइट। बट कैन आई से, ठीक है, अगर आप बी का देखोगे तो उसके पास 2 5 हैं, अगर आप यहाँ पे उसको 5 नहीं दे रहे हो तो उसको अल्टीमेटली यहाँ पे दोनों 5 आने पड़ेंगे, ये सुनो, क्योंकि यू आर सेइंग, आप कह रहे हो कि ट्रायल 3 में अगर एक जगह पावर बेकन आया दैट इज एक्जैक्टली 5 पॉइंट डायरेक्ट हिट, है ना, विच इज विद डी, तो आप कह रहे हो कि फिर ट्रायल 2 में उसका डबल होना चाहिए, तो 2 आने चाहिए, दैट इज इन द कॉलम ऑफ ट्रायल 2। बट अगर आपने यहाँ पे ट्रायल 3 के कॉलम में अगर एक और पावर बेकन नहीं दिया तो बी के दोनों 5 1 और 2 में ही आएंगे अल्टीमेटली, और कोई पोजीशन नहीं बचती उनके पास, राइट। तो उस केस में ट्रायल 2 में 3 पावर बेकन हो रहे हैं मेरे, ठीक है। इवन इफ मैं अगर ई का पावर बेकन यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, उससे नहीं फर्क पड़ता, बट तब भी यहाँ पे 3 हो रहे हैं, राइट, विच मीन्स कि ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स जो ट्रायल 3 है मेरा, वहाँ पे ए पावर बेकन तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो ट्रायल 2 में 3 नंबर आ जा रहा है मेरा, ठीक है। आई कैन नॉट अवॉइड गेटिंग अ 3 पावर बेकन इन ट्रायल 2, सो दैट इज वाई दिस केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्जैक्टली डबल नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ ट्रायल 3 में 2 पावर बेकन कर दूं मैं, ठीक है, तो अगर मुझे ट्रायल 3 के कॉलम में 2 पावर बेकन करने हैं तो द ओनली पॉसिबिलिटी आई हैव, जो मैंने ये क्रॉस डाला था ना बी का, ये क्रॉस हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक 5 प्लेस कर दूं, है ना, तो 2 5 यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि सी को तो कोई 5 मिला ही नहीं है, ठीक है, सी हैज़ नॉट गॉट एनी 5, राइट, तो सी को तो मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 5 आ गया, 2 5 आ गए, तो अब मुझे ट्रायल 2 में 4 पावर बेकन चाहिए, राइट, आई नीड एक्जैक्टली 4 5, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक ई का 5 है यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है, और एक बी का 5 यहाँ पे प्लेस कर दो, राइट। तो इस केस में कैन आई से इस कॉलम में 4 5 हो रहे हैं एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज डेफिनेटली गेटिंग सेटिस्फाइड, तो कैन आई से दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि ट्रायल 2 में जो है नंबर ऑफ पावर बेकन, द नंबर ऑफ हीरोज हु हैव स्टक पावर बेकन इन ट्रायल 2 इज डबल as that of trial 3, so the combination that is possible is of nothing but 2 and 4, right। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कि B का एक 2 पॉइंट बच गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रायल 1 में, है ना। अच्छा, E का जो है आई वुड से कि यहाँ पे 2 बच गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और C का जो स्कोर है ना, C का जो स्कोर है, अब C कैन टेक एनी वैल्यू अमंग 1 2 3 एंड 4, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे भी C कोई भी वैल्यू ले सकता है 1 2 3 एंड 4, है ना, कोई भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब देखते हैं टोटल स्कोर्स क्या आ रहे हैं, तो A का बन रहा है 5 4 9, सो वी नो फॉर A B and C it was 15, राइट, वी वर पुटिंग 1 2 and 2, ठीक है। सो फॉर A B एंड विच वॉज द थर्ड पर्सन E, सो इन तीनों के स्कोर्स तो डेफिनेटली 15 ही है, ठीक है। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट C हियर, तो कैन आई से सी का एक रेंज ऑफ स्कोर्स आ रहा है, इजंट इट। सी का रेंज कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, अगर उसका ट्रायल 1 में 1 और 1 मिला तो उसके मिनिमम 6 पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों में अगर 4 और 4 मिला तो उसके मैक्सिमम 12 पॉइंट हो सकते हैं, इजंट इट, ठीक है। अगर मैं डी की बात करूं तो डी इज सिटिंग विद हाउ मेनी पॉइंट्स, 5 5 10 5 15 5 20 एंड 1 21 पॉइंट्स, ठीक है। डी के यहाँ पे 21 है, और ये वाले में उसके, अच्छा, इसमें भी उसका कुछ ना कुछ स्कोर हो सकता है रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो डी के पास भी एक रेंज ऑफ स्कोर आएगी, राइट। डी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ट्रायल 6 जो कि मुझे नहीं पता है, राइट। सो आई कैन से 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, राइट। तो उसके हो गए 21 तो यहाँ तक थे ही, या तो 22 हो सकता है या मैक्सिमम 26 तक जा सकता है, राइट। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट एफ, तो एफ हैज 5 5 10 5 15 5 20, ठीक है, और उसके बाद 20 के बाद प्लस 22 एंड मैक्सिमम 24, ठीक है। सो 22 से 24 तक रेंज हो सकती है फॉर एफ एज वेल, राइट। सो दीज आर द रेंजेस आई हैव गॉट, ठीक है। अब अभी भी मेरे पास एक पॉइंट बचा हुआ है, इफ यू गाइज रिमेंबर, जो कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था, वेयर इट टोल्ड मी कि द हाइएस्ट स्कोर वॉज 1 more than डबल द लोएस्ट स्कोर। कहाँ गया, यस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। द हाइएस्ट स्कोर इन द टूर्नामेंट वॉज 1 more than डबल द लोएस्ट स्कोर, राइट। तो अभी मैंने इस पॉइंट को नहीं यूज किया ना, तो आई वुड से कि जो हाइएस्ट स्कोर है इट इज 1 more than डबल द लोएस्ट स्कोर, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट स्कोर की पॉसिबिलिटीज क्या है, राइट। तो हाईएस्ट स्कोर या तो मेरा डी का हो सकता है या तो मेरा एफ का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर एफ का हाईएस्ट स्कोर होता है, राइट, सो अंडरस्टैंड गाइज कि ये जो मेरा नंबर है, राइट, 2l+1, राइट, दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, लोएस्ट स्कोर 2l+1 हो गया, इधर हाईएस्ट आ गया, राइट। सो 2 into एनीथिंग इज अ इवन नंबर, राइट। उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो जो मेरा हाईएस्ट स्कोर आएगा वो डेफिनेटली ऑड नंबर आना चाहिए, राइट। इट इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, ठीक है।
अब अगर मान लो हाईएस्ट स्कोर f का मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो 22 से 24 की रेंज में एक ही और नंबर बनता है, दैट इज 23, राइट। अच्छा, अगर 23 हो गया यहाँ पे, तो मेरा लोएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, फिर मैं बोलूँगा 2 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा, तो लोएस्ट स्कोर भी 11 हो गया और हाईएस्ट स्कोर 23 हो गया, राइट। सो यू आर सेइंग कि लोएस्ट स्कोर पॉसिबल 11 सिर्फ सी का है, राइट, दैट इज क्रिम्सन। तो अगर मैं क्रिम्सन का यहाँ पे 11 रखता हूँ, है ना, और एफ को हाईएस्ट स्कोर देता हूँ, दैट इज 23, राइट, और उस केस में फिर डी को 23 से कम देना पड़ेगा, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज 22। क्या ये मेरा केस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अंडरस्टैंड बाय, क्योंकि यहां पे दिया हुआ था मेरे पास कि देर आर द टोटल स्कोर ऑफ 5 हीरोज व मल्टीपल ऑफ 3, है ना, बट ना तो यहाँ 11 मल्टीपल ऑफ 3 है, ना 22 मल्टीपल ऑफ 3 है, ना 23 मल्टीपल ऑफ 3 है। सिर्फ एक हीरो ऐसा है जिसका स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बाकी सबका मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। सो दैट मीन्स व्हाट, कि एफ तो मेरा डेफिनेटली हाईएस्ट स्कोरर नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर केस इज रूल्ड आउट, है ना, एफ मेरा हाईएस्ट स्कोरर नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे ये वाला केस रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो आई कैन से एफ डेफिनेटली कैन नॉट बी द हाईएस्ट स्कोरर विद अ स्कोर ऑफ 23 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड हियर नाउ। अगर एफ मेरा हाईएस्ट स्कोरर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली डी मेरा हाईएस्ट स्कोरर होगा, है ना, डी हैज टू बी द हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है। अगर डी हाईएस्ट स्कोरर होता है, ठीक है, तो जो D का स्कोर है वो 22 से 26 की रेंज में लाई कर रहा है, और C जो है उसको मेरा लोएस्ट स्कोरर होना पड़ेगा, राइट। C हैज टू बी द लोएस्ट स्कोरर, इजंट इट। अच्छा, अगर लोएस्ट स्कोरर C के अगर मान लो 10 हो गए पॉइंट्स, ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोरर के 21 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 इंटू L दैट इज द लोएस्ट स्कोर प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 10 प्लस 1 इज 21, राइट। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है D का स्कोर, क्योंकि D का स्कोर लाई कर रहा है 22 से 26 की रेंज में, ठीक है। अगर मैं 11 लेता हूं यहाँ पे, तो 2 इंटू 11 इज 22 प्लस 1 23। अगेन सेम सिनेरियो फंस रहा है यहाँ पे, क्या कि दोनों स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो मेरे पास एग्जैक्टली सिर्फ एक स्कोर हो सकता है 6 में से, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं C का स्कोर 12 लेता हूँ, तो ये 25 बन गया, राइट। अच्छा, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो मैं यहाँ पे ये केस डेफिनेटली ले सकता हूँ कि C का स्कोर 12 हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे D का स्कोर जो हो जाए वो 25 हो जाए, एंड D बिकम्स द हाईएस्ट स्कोरर, राइट। अच्छा, अगर D का स्कोर 25 हो गया, राइट, तो अभी तक उसका 21 था, तो यहाँ पे मतलब उसको 4 पॉइंट मिले ट्रायल 6 में, है ना, ट्रायल 6 में 4 पॉइंट्स स्कोर किए उसने, और अगर उसका यहाँ पे 12 हुआ, मतलब इस दोनों में C ने ट्रायल 1 और ट्रायल 3 में दोनों में 4 पॉइंट्स यहाँ पे स्कोर किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझो यहाँ पे कि सिर्फ एक ही स्कोर होना चाहिए था जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो, तो कहने से F का स्कोर फिर डेफिनेटली 24 होना पड़ेगा, क्योंकि इट लाइज इन द रेंज 22 टू 24, मतलब 22, 23, 24 तीन स्कोर पॉसिबल है, बट ये दोनों तो मल्टीपल ऑफ 3 है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 24, और अगर यहाँ पे 24 है, दैट मीन्स F इज स्कोरिंग 4 पॉइंट्स इन ट्रायल 3, ठीक है ना। सो आई थिंक कि ये अब मेरा सेट पूरा कंप्लीट हो गया, इट इज सैटिस्फाइंग ऑल द गिवन कंडीशंस हियर, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस टेबल, आई थिंक नाउ आई एम प्रीटी गुड टू गो विद द क्वेश्चंस हियर, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस एक एक करके अटैक करते हैं यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, what was the absolute difference between the lowest total score and the highest total score? So we know that the lowest total score was 12, I guess, with person number C, right? The hero C had the lowest score, that is 12, and the highest is with hero D, that is 25. So the difference is of nothing but 25 minus 12, which is equal to 13. That is option number 1. What is phi total score? So the total score of phi is nothing but I can say 24. So that is option number 3. Right? What was Blitz total score? So score of B was how much? I can say Blitz total score is 15. So my answer is definitely none of these, right? Okay. Last question. Which of the following statement is true? Let's see. Faye was the highest scorer. No, that is not a true statement because D was the highest scorer, right? Okay. Crimson was the lowest scorer. Yes, Crimson was the lowest scorer. That is with the 12 score, isn't it? So option number 2 is definitely a true statement, right? Let me check the other options as well. Dusk score was 23. No, Dusk score was 25. He was the highest scorer, right? Dusk was the highest scorer with a score of 25, right? Ember score was 24. Okay, let's see. Ember score was 24. No, Ember has got a score of 15. So all the other statements are incorrect. The only correct statement is statement number 2. So these are my required answers. So I hope everybody could follow this particular set. I think this was
मॉडरेट लेवल सेट, एक अच्छा सेट था विद गुड लर्निंग हियर, है ना। अच्छी लर्निंग यहाँ पे क्या थी कि यू नीड टू प्लेस द स्कोर्स वन बाय वन, है ना। ये जो स्कोर का जो प्लेसमेंट था ना, ये रेंज फिगर आउट करना, ये पॉइंट्स पे सोचना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि व्हेन वी आर सॉल्विंग सेट्स हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सेट सॉल्व किया है, आई गारंटी कि आप इस पॉइंट पे आके फंसे होगे, आपको ना ये यहाँ पे स्ट्राइक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी कि हाईएस्ट जो है वो डबल ऑफ लोएस्ट प्लस 1 है, तो मैं क्या क्या वैल्यूज एज्यूम कर सकता हूँ, है ना। तो हम लोग ना थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेते हैं व्हेन वी सी द मोमेंट वी कम अक्रॉस मल्टीपल केसेस, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस की लर्निंग यही है कि जब तक आप केसेस लिखोगे नहीं तब तक एलिमिनेट नहीं होंगे केसेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट द डेटा नीटली और केसेस लिखो एक एक करके, और फिर कंडीशन को वेरीफाई करो कि इफ यू आर कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर केस, क्या वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको एलिमिनेट करते जाओ, एंड दैट इज ओनली हाउ यू कैन सॉल्व अ सेट, है ना। लॉट ऑफ टाइम आई गेट दीज क्वेरीज कि सर फंस जाते हैं, आधा सेट बनता है, राइट। सो द ओनली वे टू टैकल दिस इज यू हैव टू राइट द केसेस, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड फ्रॉम राइटिंग द केसेस। केसेस लिखने से डरो नहीं, उसको लिखो, उसको एलिमिनेट करो एंड देन सॉल्व द एंटायर सेट। Alright, so I'll be coming with more sets under this playlist. Please keep following this playlist. ठीक है, अच्छे sets और आएंगे आगे. Lot of practice through this playlist, especially those people who are yet not a part of Rodha can follow this playlist. You will definitely benefit a lot from this. Alright, so with this I'll come to the end of this particular video here. I'll see you again in the next video. Thank you.